Hello everyone, welcome back to EVS class. So today we are going to do exercises and some question answers in worksheet. So please open your worksheet, page number 4. Okay. So how are you all? I hope you are all good and safe at your home. Okay. So before going to start exercise, I will give you quick revise of chapter 10. Okay. So air around us. Air is everywhere. Air is everywhere. But we cannot see the air. But we can feel the air. Okay. So natural air is different and जो natural नहीं है like AC, cooler, fan, they also gives us air. Okay. Those are made by man. Okay. So in this chapter we learnt the moving air, what does air contain, properties of air, keeping the air clean. Okay. So what is air? Moving air is called wind. What is a wind? Moving air is called wind. So wind helps us in many ways. Okay, there are 4 ways in our chapter. First way, wind helps a kite fly. Second, wind helps a boat sail. Third, wind turns the blades of a windmill. And fourth one, wind helps clothes dry faster. Okay, so हमने wind vane के भी जाना. Wind vane tells the direction of wind. जो wind vane रहता है वो हमें wind का direction दिखाता है. Okay, it is usually fixed on the top of the buildings. Okay, ये बिल्डिंग के टॉप में लगाते थे पहले, अभी नहीं लगाते कोई, अभी कंपास यूज़ करते हैं ना दिशा देखने के लिए. ओके, लेकिन ये जो विंड वेन है ये पहले के लोग लगाते थे, इसको वेदर कॉक भी बोलते थे. ओके, इसको विंड का ये जानने के लिए. ओके, सो अ जेंटल विंड इज कॉल्ड अ ब्रीज. वी एंजॉय अ कूल ब्रीज. ओके, a gentle wind is called breeze. Okay, so next there are 2 winds in our chapter. One is breeze and second is storm. Okay, so when the wind is strong and blows very fast, it is called a storm. Okay, a storm can be harmful. It can blow things away and damage trees and houses. Okay, storm हमें harmful रहता है. Okay, only we enjoy cool breeze, not storm. Air is a mixture of gases, है ना, ये मैंने वीडियो में दिखाई थी. Okay, so wet clothes when kept under the sun become dry after some time. कैसे ड्राई होते हैं वो? The heat of the sun changes the water vapor. ओके, वो जो सन का हीट रहता है वो कपड़े में से वाटर बाफ बन के ऊपर चला जाता है, उसको हम वाटर वेपर बोलते हैं. सो एयर कंटेन्स वाटर वेपर, डस्ट, स्मोक एंड जर्म्स. डस्ट जब स्वीपर स्वीप करते हैं तब डस्ट एयर में घुल मिल जाता है, और स्मोक व्हीकल से आता है, फैक्ट्री से आता है, और जर्म्स हमारे अंदर से ही बाहर आता है, एयर में घुल मिल जाता है. Okay, so properties of air. We also learned about deflated and inflated. What is the meaning of deflated? Deflated, something from which air has been taken out. जिस चीज़ का like बॉल लीजिए, बॉल से जो एयर बाहर निकाला जाता है उसको हम deflated बोलते हैं, और जब हम वापस एयर बॉल के अंदर भरते हैं उसको inflated बोलते हैं. Okay, so there are 3 properties of air. Air fills space. Air gives shape to things. Air has weight, है ना. These are properties of air. Okay, so we must breathe in fresh and clean air. It is very important for good health. Okay, so now we are going to start writing worksheet. Okay, so first one, wind helps a fly. What fly? Kite. We have to write here kite. Okay, so second one, the moving air is called, what will answer come? Wind. The moving air is called wind. Okay, third one, a wind vane tells the blank of wind. Wind vane क्या दिखाता है हमें?
डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ विंड दिखाता है, डायरेक्शन, DIRECTION, ओके। तो विंड हेल्प्स अ काइट फ्लाई, द मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, अ विंड वेन टेल्स द डायरेक्शन ऑफ विंड, ओके। So next move to match the following. Match the following second exercise. In A there are questions, in B answers. Okay. First one, breeze. Breeze कैसे रहती है? Breeze gentle wind है. So we have to write here B. First का आंसर है ऑप्शन B. सेकेंड, storm. Storm कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हम? It blows very fast. तो सेकेंड का आंसर है सी, ओके। नेक्स्ट, मूविंग एयर. मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, सो ए है, डन, ओके। सो ब्रीज, gentle wind, storm, blows very fast, moving air is called wind, okay. Next, move to true and false. Write T for true and F for false. A storm can be harmful. Is it true, children? Yes, a storm is harmful for us. It damages trees and everything. Okay. So next, a moving air is called storm. No, this is false because a moving air is called wind, not storm. Okay. Next, wind helps to a boat sail. Yes, this is true. Okay, so wind helps clothes dry faster. It is also true. Then next we are going to do day 2 exercises. Okay. Air also contains water vapor. Water vapor. Okay. So we have to write here water vapor. Smoke is given off when something burns, है ना। स्मोक कब होता है? स्मोक कहाँ से आती है? व्हीकल से आती है, कोई बात नहीं, लेकिन स्मोक कहाँ से आती है? कुछ हम जलाते हैं, लाइक बॉनफायर आपने देखा होगा, ओके। उससे भी एयर में स्मोक घुल मिल जाता है। स्मोक इज गिवन ऑफ व्हेन समथिंग बर्न्स, ओके। नेक्स्ट, मूव टू मैच द फॉलोइंग, ओके। सो यहाँ पे देर आर क्वेश्चंस एंड दीज आर आंसर्स। मैच द फॉलोइंग, स्मोक, एयर कंटेंट्स एंड प्लांट्स, ओके। स्मोक का क्या आता है? व्हेन समथिंग बर्न्स। स्मोक कहाँ से आती है? व्हेन समथिंग बर्न्स। तो स्मोक का हमें लिखना है आंसर बी। व्हाट एयर कंटेंट्स? एयर कंटेंट्स वाटर वेपर, तो सेकेंड का आंसर है सी, ओके। प्लांट्स क्लीन एंड फ्रेश एयर, प्लांट्स गिव्स अस क्लीन एंड फ्रेश एयर, दिस इज फुल सेंटेंस, ओके। थर्ड का आंसर क्या है? ए, डन, ओके। नेक्स्ट, मूव टू पेज नंबर 5. Okay. Write T for true and F for false one. Okay. So air contains dust, smoke and germs. Is it true? Yes. This is false. क्यों false है? Because air contains dust, smoke and germs, also water vapor. तो यहाँ पे एक मिसिंग है, सो दिस वन इज फॉल्स। फैक्ट्रीज गिविंग आउट स्मोक, यस दिस इज ट्रू। स्मोक कहाँ से आता है? हमें फैक्ट्री से और व्हीकल से स्मोक बाहर आती है, ओके। वी शुड नॉट ग्रो मोर प्लांट्स, इज इट ट्रू? नो, दिस वन इज फॉल्स, वी मस्ट ग्रो मोर प्लांट्स, ओके। सो नेक्स्ट, मूव टू fill in the blanks, day 3. Fill up the blanks, okay. So air gives shapes to things,
यहाँ पे हम थिंग्स लिखेंगे। एयर गिव्स शेप टू थिंग्स। ओके, प्लांट्स कीप द एयर फ्रेश एंड क्लीन। यहाँ पे हमें फ्रेश लिखना है, यहाँ पे हमें क्लीन लिखना है। क्लियर? ओके, सो एयर गिव्स शेप टू थिंग्स एंड प्लांट्स कीप द एयर फ्रेश एंड क्लीन। प्लांट्स और ट्रीज हमें क्या मदद करती है? हमारे एयर को फ्रेश रखने में हेल्प करता है। ओके, सो नेक्स्ट मैच द फॉलोइंग। हियर क्वेश्चंस एंड हियर आंसर्स। ओके, so first deflated. What is the meaning of deflated? Any guesses? Yes, air has been taken out. जो थिंग में एयर नहीं रहती है उसको हम deflated बोलते हैं। तो फर्स्ट का आंसर है बी। ओके, नेक्स्ट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनफ्लैटेड? इनफ्लैटेड मीनिंग क्या? जिसके अंदर एयर रहता है, एयर इनसाइड इट। ओके, सो सेकेंड का आंसर है सी। ओके, नेक्स्ट एयर हैज वेट। ओके, तो थर्ड का आंसर है ए। क्लियर? नेक्स्ट मूव टू राइट, ट्रू एंड फॉल्स। राइट ट्रू फॉर टी, एफ फॉर एफ लिखना है। ओके, सो फर्स्ट वन क्या है? वी शुड नॉट कट ट्रीज। इज इट ट्रू या फॉल्स चिल्ड्रन? यस, दिस इज ट्रू। वी शुड नॉट कट ट्रीज। इसके बदले में हमें क्या करना है? वी शुड ग्रो मोर प्लांट्स सराउंडिंग अस। ओके, जो हमारे सराउंडिंग में खाली प्लेसेस है वहाँ पे वी मस्ट ग्रो प्लांट्स, क्योंकि प्लांट्स एंड ट्रीज गिव्स अस फ्रेश एंड क्लीन एयर। Okay, so we should not cut trees. This is true. Next one, we should pluck flowers and leaves. Unnecessary. Okay, like हम कहीं घूमने जाते हैं, कहीं पार्क में हम लोग जाते हैं ना, तो बिना वजह प्लक मीन्स निकालना, खींचना। जो प्लांट्स रहते हैं उसके पत्ते तोड़ते रहते हैं, क्यों तोड़ना है? फ्लावर्स भी ऐसे तोड़ तोड़ के नीचे फेंक देना है। अगर आपको यूज़ है, लाइक आपको फ्लावर लगाने के लिए चाहिए फ्लावर पॉट में, या तो भगवान को चढ़ाने के लिए चाहिए, देन यू कैन प्लक फ्लावर्स। ओके, सो ऐसे ही आप फ्लावर्स को प्लक करते रहेंगे, लीव्स को, तो कितना नुकसान होगा। क्योंकि लीव्स ग्रो करने में, प्लांट्स ग्रो करने में कितने महीने, कितने साल लग जाता है एक प्लांट को ट्री बनने में, है ना। सो वी शुड नॉट प्लक फ्लावर्स। ओके, सो यहाँ पे क्या लिखा है? वी शुड प्लक फ्लावर्स एंड लीव्स। दिस इज फॉल्स। सो हमें इसके बदले में क्या करना है? वी शुड नॉट, यहाँ पे नॉट, वी शुड नॉट प्लक फ्लावर्स एंड लीव्स। ओके, नेक्स्ट वी मस्ट ब्रीथ इन फ्रेश एंड क्लीन एयर। दिस इज ट्रू। वाई दिस इज ट्रू? बिकॉज हम बीमार ना पड़े। सो वी मस्ट ब्रीथ इन फ्रेश एंड क्लीन एयर। We do not breathe in dirty air. Okay, so in that time we have to use masks और रुमाल। Okay, so again मैं क्विक रिकैप करती हूँ जो हमने किया है। Okay, so first हमने डे 1 से शुरू किया डे 2 तक। Okay, so wind helps a kite fly. The moving air is called wind. A wind vane tells the direction of wind. Done. नेक्स्ट हमने मैचिंग किया। ब्रीज कैसा है? जेंटल विंड। स्टोर ब्लोज वेरी फास्ट। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। ओके, नेक्स्ट हमने ट्रू फॉल्स किया। अ स्टॉर्म कैन बी हार्मफुल फॉर अस। ट्रू। अ मूविंग एयर इज कॉल्ड स्टोर्म। फॉल्स। विंड हेल्प्स अ बोट सेल। True. Wind helps clothes dry faster. This one is also true. Next हमने जाना day 2 का। Okay, so air also contains water vapor. Smoke is given off when something burns. Okay, next
we have done. Match the following. Smoke is given off when something burns. Air contains water vapor. Plants gives us clean and fresh air. Okay, next move to page number 5. True and false again. Air contains dust, smoke and germs. This is false. क्यों false है? Because one is missing. Air contains dust, smoke, germs and water vapor. Okay, so this is false. Air contains में कितने थे? 4 थे. Dust, smoke, germs and water vapor. लेकिन यहाँ पे 3 ही हैं, इसलिए हमने false लिख दिया. Clear? Factories giving out smoke. Yes, this is true. हमें smoke कहाँ से आता है? या तो फैक्ट्री से आते हैं या तो व्हीकल से आता है smoke बाहर. We should not grow more plants. This is false. We must grow more plants around us. Okay. Next, fill up the blanks. Air gives shape to things. Plants keep the air fresh and clean. Clear? Then we have done match the following. Deflated. What is the meaning of deflated? Deflated means air has been taken out. And inflated means air inside it. And third one, air has weight. This is property of air. Okay. Next we have done true and false. Write T for true and F for false. I hope आपने सबने मेरे साथ ही किया है work. Okay. So we should not cut trees. Yes, this is true. है ना? हमें ट्री को कट करना है क्या? नहीं. We should not cut trees. Okay. Next, we should pluck flowers and leaves. No, sorry. This is also false. We should not cut trees. This is true. है ना? हमें ट्रीज को बचाना है, कट नहीं करना है. Okay. We should pluck flowers and leaves. So this is false. We must breathe in fresh and clean air. Yes, this is true. क्योंकि हमें सांस कैसी जगह लेना है? जहाँ पे फ्रेश एयर रहती है वहाँ हमें ब्रीथिंग करना है. ओके, डर्टी एयर में हमें ब्रीथिंग नहीं करनी है. नेक्स्ट हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है. शॉर्ट क्वेश्चन आंसर कल करेंगे. What is breeze? What is a storm? When do we feel air? Okay. So long answer question say, why should we keep the doors and windows open? Why do wet cloths dry under the sun? ये सब हम कल करेंगे. ओके. सो आज आपके लिए इतना काफ़ी है. आज आप क्या करेंगे? डे 1, डे 2, डे 3 का कंप्लीट करेंगे. प्लीज़ एक बार देख लीजिए. ओके. सो इस चैप्टर के रिलेटेड कोई क्वेरीज है आपको तो आप ऑनलाइन क्लास में पूछ सकते हो. ओके. उसमें डरने की नहीं है. जो आपको चैप्टर समझ में नहीं आता है तो आप हमें पूछ सकते हो. ओके. ये देखिए डे 2 का हमने कंप्लीट किया. ओके. सो फिर हमने क्या किया? डे 3 का भी हमने कंप्लीट किया. दिस इज डे 3. ओके. सो आज आपको वर्कशीट में एक कंप्लीट करना है. डे 1, डे 2 एंड डे 3. सो कल हम क्वेश्चन आंसर लिखेंगे. इसीलिए आप लोग क्या करेंगे? कल वर्कशीट लेके रखेंगे पेंसिल के साथ. ओके. सो आपका ये आज का वर्क डन है. सो कल हम क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट करेंगे. ओके. सो बी सेफ, कीप लर्निंग, हैव अ वंडरफुल डे चिल्ड्रन. बाय बाय एंड टेक केयर. हैव अ नाइस डे एवरीवन.